टेक्नोलॉजी कैपिटल सागा। आइए आज सबसे पहले बात करते हैं बिरला सॉफ्ट लिमिटेड शेयर की। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो करीब करीब 474 के आसपास है सॉरी। एंड प्राइस टारगेट रहेगा हमारा 580। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज प्रमोटेड बाय सीके बिरला ग्रुप। बिरला सॉफ्ट वाज heavily dependent on GE for its business till financial year 2015. During this phase, financial 2015 to 2018, the non-GE business reported a healthy 15 to 60% CAGR, and the company divested the GE business in a slump sale to GEN Pact. On January 15, 2019, Birla Soft Limited, an unlisted company, merged and amalgamated with KPIT Technologies Limited, and the engineering business of KPIT Technologies Limited was on a going concern basis demerged and transferred to an independent entity. Post restructuring, Birlasoft became an organization with a mix of digital and ERP revenue. Birlasoft had strength primarily on the non-ERP digital businesses, while KPIT IT services possessed core strength on the enterprise software solutions and capabilities in digital transformation services. And key investment arguments are: Birlasoft has transformed its business significantly from enterprise business to enterprise digital solutions in the last 5 years and is well placed to capitalize opportunities by leveraging its product and platform based solutions. Management remains confident of delivering decent revenue growth in Q3 financial year 2020 despite fewer billable days, led by strong broad-based demand, a recovery in enterprise solutions, and ramp-up of a new deal. Non-enterprise business to maintain growth momentum, the management aspire to clock $1 billion in annual revenue by financial year 2025 against current annual revenue run rate of $548 million, of which $800 to $850 million would come from organic, while the rest would arise from inorganic activity. It also eyes EBITDA margins of 18% by financial year 2025. We maintain a buy on Birlasoft with a price target of rupees 580, given its strong earning growth potential, healthy traction in deal ACVs, sharp focus on micro verticals approach, and robust demand. अभी हम आते हैं सीमेंट। जो सीमेंट सेक्टर है बेसिकली आइंग बेटर टाइम्स इन दिसंबर आफ्टर वीक नवंबर। अभी हमें लग रहा है कि नवंबर में तो इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन दिसंबर में इसका जो है काफ़ी अच्छा इसका हम राइज देखेंगे इस सेक्टर्स की। तो व्यू हमारा पॉजिटिव है। समरी जो है, पैन इंडिया सीमेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 2021 रोज 6% YOY and 3.7% versus Q2 financial year 22. Due to pickup in cement prices, MOM during October, price hike undertaken in early November were rolled back. Cement offtake stayed healthy in October but weakened in November due to regional issues such as Delhi NCR construction ban, rains in southern India, sand availability issue, apart from onset of festive and marriage season. Pet coke price continued upward trend while diesel corrects during November 2021. We expect cement demand and prices to pick up from December 2021. We stay positive on the sector and our preferred picks are Ultratech Cement, Shri Cement, the Ramco Cement, Dalmia Barth, JK Lakshmi Cement and Grasim. हमें जो लगता है कि जो भी स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने बात की है, अल्ट्राटेक वगैरह, श्री सीमेंट, द रैमको सीमेंट, ये सब जो सीमेंट्स हैं, सभी जितने भी सीमेंट्स के स्टॉक्स हैं उनमें हम लोग पॉजिटिव व्यू देख रहे हैं। एंड सेक्टर व्यू स्टे पॉजिटिव। सीमेंट स्टॉक्स हैव करेक्टेड बाय 10 to 15% ड्यूरिंग नवंबर 2021 owing to weak demand and rollback of hike in cement prices taken during early November. We believe it provide investors an opportunity as structural demand drivers such as government infrastructure investment, pickup in residential demand and private sector capex pickup remain intact. We expect cement demand to improve from December with peak demand in Q4
फाइनेंशियल 2022। इसका मतलब ये है कि हमें इस दिसंबर से लेके जो Q4 का दिसंबर जो 2022 का रहेगा, तो एक साल भर के आप मान सकते हैं कि इसका डिमांड एक पीक पे रहेगी। तो इस समय बिल्कुल सही समय है कि हम सीमेंट के सेक्टर में इन्वेस्ट करें। द पिकअप इन डिमांड वुड आल्सो एनेबल सीमेंट कंपनीज to pass on the rise in power and fuel cost to end consumers. Hence, we stay positive on the sector. We have a buy rating on Ultratech, Shri Cement, the Ramco Cements, Dalmia Bharat, JK Lakshmi Cement, and Grasim Industries. And key risks: a weak macroeconomic environment and increased power, fuel, and freight cost negatively affect profitability. अभी आते हैं हम जो है टाइटन पे। तो टाइटन का जो शेयर है, इससे बाई की रिकमेंडेशन है। तो करंट मार्केट प्राइस जो इस समय चल रहा है 2375 के आसपास। कंपनी गाइडेड टू 10% प्लस ज्वेलरी सेल्स ग्रोथ एंड 12 to 13% मार्जिन। एनालिटिक्स और डिजाइन इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस लेड बाय वर्सेस पीएस। कंपनी इज कॉशंस ऑन द न्यू ओमिक्रॉन impact. It is not witnessing any material concerns on demand as yet. It is one of our preferred picks in the consumer space. अभी जो SCL टेक का है, इसका करंट मार्केट प्राइस जो SCL टेक का है वो चल रहा है 1139। टारगेट जो हमारा है वो 1400 के आसपास है। एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग डिमांड इन्वायरमेंट टू सस्टेन फॉर एट लीस्ट 3 years. Supply issue to persist until growth keeps accelerating or cools below low mid-teens. P&P should bounce back in Q3 helped by seasonality. Still see value in the stock. अगला जो शेयर हमारा वो है मारुति। इस समय जो मारुति का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 7068 के आसपास है और हमारा जो टारगेट है वो 9000 का है। दिसंबर प्रोडक्शन टू बी एट 80 to 85% ऑफ नॉर्मलाइज्ड लेवल्स। December production guidance of 80 to 85% of normalized level indicates a flattish trend now. Semiconductor supplies could still take some more time to normalize fully. तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म और आज का जो इसका जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का लेवल्स हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें अभी जैसे निफ्टी का है, निफ्टी 16,000 टारगेट जो है हमारा अभी 16,700 का है और रिवर्सल जो रहेगा वो 17,400 के आसपास रहेगा। और बैंक निफ्टी का 35,300 से लेके 36,800 का है, यानी कि सपोर्ट हमारी 16,700 की है और जो रेजिस्टेंस है 714,400 का है। और इसका जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 35,300 की है और जो रिवर्सल यानी कि रेजिस्टेंस है वो 36,800 का है। और मीडियम टर्म में अगर ट्रेंड देखें तो निफ्टी का जो है सपोर्ट जो है वो 16,600 है और जो रेजिस्टेंस है 18,600 है। और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो सपोर्ट जो है वो 35,000 की है और जो रेजिस्टेंस है 41,830 का है। ये मीडियम टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए। और अगर आज की बात करें तो आज का जो सपोर्ट है वो 60,900 है पहली। इसको तोड़ के अगर निफ्टी नीचे जाती है तो फिर नेक्स्ट आप मान के चलिए कि ये वापस मुड़ सकता है ऊपर की तरफ 16,782 के आसपास। अगर इसको भी तोड़ के अगर नीचे जाता है फिर आप ये मान सकते हैं कि 16,700 और ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो हमारा जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 17,718 के आसपास है। तो इस तरह से अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो वो इसका पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 17,173 के आसपास। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो 17,284 के आसपास है। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है और मार्केट और ऊपर चली जाती है, अगर उसमें लगता है कि बाई का ट्रेंड ज़्यादा है तो 17,325 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ तक इसका रहेगा। और बाकी इसका अगर 40 डे DEMA देखें तो 17,655 के आसपास है। अब बात करें बैंक निफ्टी की, जो हमारी सपोर्ट है, पहली सपोर्ट है हमारी 35,500 के आसपास। ये भी ब्रेक हो गया अगर बैंक निफ्टी और नीचे चले जाती है फिर हम नेक्स्ट सपोर्ट जो मान के चल सकते हैं वो है 35,328। अगर इसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे चले जाती है तो फिर हमारा जो आज का जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली जो हमारा रहेगा वो 35,000 के आसपास रहेगा। बाकी जो मार्केट है, मार्केट सुप्रीमो है, मार्केट ऊपर नीचे तो कर ही सकती है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो पहला रेजिस्टेंस है वो 36,110 के आसपास है। अगर उसको भी ब्रेक करके मार्केट और ऊपर चले जाती है बैंक निफ्टी का, अगर लगता है कि बाई की पोजीशंस और ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं तो फिर हम नेक्स्ट उससे मानेंगे 36,647
अगर ये भी ब्रेक हो जाता है और मार्केट में काफ़ी बुलिश अगर रहती है तो हम जो आज का जो फाइनल मान रहे हैं 37,000 के आसपास है हमारा जो रहेगा रेस्ट और 20 DSMA जो हमारा है वो 38,180 के आसपास है और 40 जो DEMA है वो हमारा 38,021 के आसपास है। तो ये था आज के लिए। तो और डेली अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि हम लोग आपको जो भी है टाइम टू टाइम मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ। डेली आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर लगते हैं जिनका हमें मार्केट में खरीदने का कोई रीज़न है, तो हम वो शेयर यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो हम लोग शेयर परचेज कर रहे हैं इसमें कहीं आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जो मेरी पर्सनल जो अगर रिकमेंडेशन यही रहेगी आपको, पर्सनल में यही व्यू रहेगा कि पहले सबसे पहले आप पेपर ट्रेड करें 6 महीने मिनिमम 3 से 6 महीने पहले आप बाच करें। बाकी अगर हम लोग जो यहाँ से हम लोग जो आपको जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी रिकमेंडेशन जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, अगर उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो फिर आप उसको आप रियल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल ट्रेड कर सकते हैं उसमें। पर वैसे मैं तो जो भी जहाँ से लेता हूँ मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता क्योंकि मेरा एक है पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी आप लोग एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, ठीक है। तो बाकी जो भी मैं स्टॉक जहाँ करता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग से होते हैं। तो बाकी कोई भी आपकी क्वेश्चंस कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे यहाँ डाल सकते हैं, मैं उसका जो भी स्ट्रैटेजी कोई भी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसी के अगेंस्ट जो भी है आपको वीडियो डाल के उसमें बता दूंगा आपको। थैंक यू।